we follow a concept of show don't tell. So you should solve the problems in the webinar and show how you solve them, how you think about these problems. So ऐसे मैंने एक सिंपल इकोनॉमी का क्वेश्चन लिया, सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे आपको बताया कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप प्रोवाइडेड आप काम रहो, आप कॉन्फिडेंट रहो. So but why do we like talk about solving the PYQs? Why are PYQs so important? तो like what sir used to tell me in very simple language कि PYQ से ना तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन से आंसर कैसे निकालना. So you will understand how the answer is hidden in the question itself in many cases. और वो चीज हमें यूपीएससी के क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना, उससे पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि हाँ, क्वेश्चन अगर इस वे में, इस लैंग्वेज में रिटन है, तो उससे हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं. और अगर आप मल्टीपल पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे, मल्टीपल राउंड्स में, इफ यू ट्राई टू सॉल्व पीवाईक्यूज, यू विल अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू कैच द लैंग्वेज. मतलब एक बार करने से विल सी कि हाँ ठीक है, सही हुआ गलत हुआ हमें पता चल गया, लेकिन दोबारा उसको जब आंसर पता होने के बाद हम देखते हैं, लाइक व्हेन वी सी इट अगेन, when after looking at the answer, we realize that okay, where we were wrong, or how could we have solved this question, the same question, in a simpler way. So our approach, like this session, is mainly on role of PYQs in UPSC prelims, and I have broken it down into 4 subsections. So we'll see how PYQs help us in understanding the language that UPSC has, the language of the questions, and then based on that understanding, we can prioritize. We can prioritize what to study or what are the aspects that we have to look at. And once we have prioritized, we can prepare a strategy for the examination. Because another thing that, like when you solve PYQs, you get some time to prepare a strategy that वो 2 घंटे जो आपको मिलेंगे, like the 2 hours that you have in the examination, how do you use those 2 hours? So you have to prepare a strategy on that. And moreover, it also gives you confidence कि हाँ, आपने इतने questions solve किए हैं PYQs के, you have solved these many questions or these many papers, these many times. So you at least know these many questions. So like ऐसे 500 या ऐसे 1000 क्वेश्चन तो आपको पता है जो लास्ट 10 years में आ चुके हैं. तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस, एक बेस प्रोवाइड करता है इन द रियल एग्जामिनेशन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स. सो दैट कॉन्फिडेंस एस्पेक्ट इज एडेड बाय द PYQs अगेन. सो गोइंग विद द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज. So initially I was little apprehensive. Sir ने बोला था कि like we follow a concept of show don't tell. So you should solve the problems in the webinar and show how you solve them, how you think about these problems. So I said that sir, ऐसा तो कोई भी 10 क्वेश्चन उठा लेगा और बोलेगा कि सर ये ऐसे बनेगा, ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, इसको तो कोई भी बना लेता, ये तो लॉजिकल था, ये तो ऐसे था. But to be very honest, in real examination, it is very difficult to think that way, to think very logical. But yes, if you are able to stabilize, if you are staying confident in the examination, there is a way that you can focus on what is there in the paper and look at just the information that is present in the question to solve that question, maybe without even having a lot of knowledge about that question. तो उसी तरह से I have just picked up a few questions from different topics. Like हम लोग सिलेबस को कैसे डिवाइड करेंगे फॉर प्रीलिम्स, तो वी हैव बेसिकली डिवाइडेड इट इनटू इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया. सो आई फॉलोड दिस फॉर्मूला GHEPN. सो आई डिवाइडेड इनटू ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमी एंड देन एनवायरनमेंट. ऐसे 5 एस्पेक्ट से. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव करंट अफेयर्स. एनवायरनमेंट के बाद करंट अफेयर्स आ गया, स्कीम्स आ गई, जो भी सोसाइटी का पार्ट आ गया. सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट वी लुक एट. तो अब जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में दिखाऊंगा कि कैसे वो अंडरस्टैंडिंग या वो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ के वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन. So going ahead, I'll understanding the language in this section. We'll look at a few questions. All of these questions are from 2022 prelims. So ऐसा नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए इस साल का उठा लिया, दूसरे सब्जेक्ट के लिए किसी और साल का उठा लिया. I have picked all these questions from one single year, that is 2022. So we'll look at different subjects and one question from each, and we'll see how you could have solved this with just a little bit of knowledge and थोड़ा common sense. जैसे इकोनॉमी का एक क्वेश्चन हमने ले लिया, तो इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम लोग को कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, अब पहला ही स्टेटमेंट पढ़ना है. इसमें क्या है कि इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर इन्फ्लेशन टू हाई है तो आरबीआई क्या करेगा, इट विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, अब ये सिंपल स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ये हमने पढ़ा. सिर्फ पहला स्टेटमेंट पढ़ के मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर इन्फ्लेशन टू हाई होगा तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेगा. अब आरबीआई कुछ बाय करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करता है, तो क्या करना, उसको पैसे देने पड़ेंगे. इट विल इंजेक्ट मनी, इकोनॉमी में मनी जाएगा. इफ आरबीआई ट्राइज टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी विल बी एडेड टू द इकोनॉमी. अब इन्फ्लेशन हाई है तो कोई पैसे क्यों डालेगा और इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन को तो कम करना हमारा एम है ना. तो वहां पर जैसे ही हम पढ़ रहे हैं कि आरबीआई विल स्टार्ट बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हम पहले समझ जाते हैं कि ये पहला स्टेटमेंट तो मतलब लॉजिकल ही नहीं है. अगर इन्फ्लेशन हाई है और हम कुछ बाय कर रहे हैं मतलब इकोनॉमीज में, तो हम और पैसे डाल रहे हैं इकोनॉमी में, तो वो मुझे नहीं करना ना. आरबीआई टू रेगुलेट इन्फ्लेशन, उसका काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना विद इन द बैंडविड्थ.
अब हम 4 ± 2% में अगर इन्फ्लेशन रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आरबीआई इस टाइम पर बाय नहीं करेगा और हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है। और ये 2022 का क्वेश्चन है। In 2022, we know that paper had some questions which had like the new options were just introduced in that year. So लगता है कि वो डिफिकल्ट पेपर है, बट पिछले साल मैंने भी प्रीलिम्स दिया था, तो ये पहला ही मतलब पढ़ करके हमें समझ में आ रहा है कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है बिल्कुल। तो बस मैंने पहला स्टेटमेंट गलत बोलते मुझे आंसर मिल गया, मैं बाकी 2 स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा भी नहीं। तो एक तो ये मेरा टाइम भी सेव कर रहा है कि अगर मुझे इतना क्लियरली कुछ दिख गया यहाँ पर जिसमें कि लॉजिकल फैलेसी है कि बिल्कुल लॉजिकली तो सही नहीं है, ये काम आरबीआई नहीं कर सकता है, तो मैं बाकी 2 स्टेटमेंट्स मान लूंगा कि हाँ ठीक है सही है, और वो आप पढ़ोगे तो भी पता चलेगा, कॉन्सेप्ट भी लगाओगे तो सही निकलेगा। बट आई जस्ट एलिमिनेट द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड मार्क बी एज माई आंसर। सो ऐसे मैंने एक सिंपल इकोनॉमी का क्वेश्चन लिया, सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे आपको बताया कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप प्रोवाइडेड आप काम रहो, आप कॉन्फिडेंट रहो। अब वही आप थोड़ा डरे हुए रहोगे, इफ यू आर लिटिल बिट लाइक लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट या आपने लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं किया यूपीएससी के, तो यू विल सी कि अरे यूएसए और यूरोपियन यूनियन में इंटरेस्ट रेट्स फॉल कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, उस समय इंड्यूस क्या करेगा आरबीआई को, डॉलर बाय करेगा कि नहीं करेगा। तो वो रियल एग्जाम में आपको ये सब फेयर्स आएंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपने इतना क्लैरिटी आ गई, तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे लैंग्वेज को और फिर ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है पॉलिटी से मैंने जो पिक किया।